Okay, in the last lecture we have started the cursor in PLSQL. Okay, what is cursor, student? Who will tell what is cursor? Give the answer in your own words. Okay, आपको जो समझ में आया you can give the answer. ऐसे नहीं कि पूरा definition मुझे चाहिए. आपको जो समझ में आया whatever you understand, just tell me what is cursor. Yes, one answer is there. Memory space. Okay, yes. Cursor is not a memory space. Cursor is handle that memory space. Okay, yes, Irshad. Oracle creates the memory space. Yes, very good, Irshad. Arun, good. Okay. Oracle create the memory areas. Okay, for displaying the output of the queries. Okay, and the cursor will handle that area, memory area. Okay, known as context area. Yes. Okay, so cursor is a pointer to that context area. Okay, PLSQL control the context area through the cursor. A cursor hold the rows written by the SQL statement. Okay, a cursor hold the rows written by the SQL statement. In short, whatever output, okay, whatever our output displayed by the queries, okay, so displayed through the queries, that is handled by the cursor. Cursor will handle that output. Okay. So there are two types of cursor as we've seen in the last lecture, implicit cursor and explicit cursor. Okay, implicit cursors are automatically created by Oracle whenever an SQL statement is executed. When there is no explicit cursor for this statement, okay, programmers cannot control the implicit cursor and the information in it. Okay, implicit cursor we cannot handle. Why? Because it is handled by the Oracle. Okay, when there is no explicit cursor, अगर explicit cursor is create नहीं किया हुआ है, then Oracle will create it automatically. अगर हमने coding through we have created the explicit cursor, then उसको जो Oracle है वो create नहीं करेगा. Okay, अगर if we have not created, then Oracle will create automatically. तो जो Oracle server जो खुद से अपना cursor create करता है, that is called the implicit cursor. Okay, so that we have discussed in the last lecture. Okay, whenever an DML statement insert, update and delete is issued, an implicit cursor is associated with this statement. Okay, implicit cursor is associated with these statements. तो आप लोग query लिखेंगे ना, तो implicit cursor is associated. Implicit cursor क्या हो जाएगा, इसके साथ connect हो जाएगा. तो इसका जो भी output है, that cursor will store, or you can say cursor will control. Okay, or cursor will handle the output of these queries. The implicit cursor has the different attributes like found attribute, is open attribute, not found attribute, and row count attributes. Okay, these are the attributes of implicit cursor. Okay, what is the meaning of attributes? Attributes matlab kya, it gives the information regarding the cursor. Okay, if you want to display some information regarding cursor, then you can get using these attributes. Okay, for example, found attribute, it returns the true if insert, update or delete statement affected one or more rows. Okay, if we are if we have written the query insert, update, delete query हम लोगों ने लिखा है, तो वो query अफेक्ट हुआ है कि नहीं, ठीक है, वो क्वेरी सक्सेसफुली रन हुआ है कि नहीं. व्हेन वी आर राइटिंग दिस क्वेरी, तो कितना रोज अफेक्ट हो रहा है, अगर हो रहा है तो इट विल रिटर्न्स इट ट्रू. ओके, यस. not found is opposite of found. okay, it returns it true when कोई भी query जो है वो कोई भी query नहीं, sorry, when we are writing the query तो कोई statement affect नहीं होगा, then it will return the true. It's opposite है. okay, is open. okay, is open कर्सर वो चेक करेगा इट इज कर्सर इज ओपन और नॉट. ओके, बट वो कभी चेक करेगा जब व्हेन वी आर यूजिंग द एक्सप्लिसिट कर्सर. इम्प्लिसिट कर्सर में कोई जरूरत नहीं है. व्हेन वी आर यूजिंग द एक्सप्लिसिट कर्सर, जब हम लोग एक्सप्लिसिट कर्सर यूज करेंगे तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि कर्सर ओपन है कि नहीं. ओके, इट रिटर्न्स फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर. ओके, व्हाई? बिकॉज इम्प्लिसिट जो है वो ऑटोमेटिकली हैंडल बाय द ओरेकल सर्वर. ओके, रो काउंट. ओके, जब हम लोग क्वेरीज लिख रहे हैं, व्हेन वी आर राइटिंग द इंसर्ट, अपडेट, डिलीट क्वेरीज, तो वो क्वेरीज कितने रोज को अफेक्ट हुआ है, दैट यू वांट टू नो, तो यू कैन यूज द रो काउंट. ओके, इन शॉर्ट, cursor handle the queries and queries related information. So that query related information जो है that we can get through the attributes. Okay, इसका attributes, cursor के attributes से हम लोग information we can obtain. Okay, so that yes, simple example that we have seen in the last lecture. Okay, you can see
Okay, declare PLSQL है. So we have following the structure of the PLSQL. Variables declare, total row count. Program start from the beginning statement. Here one query is return update query. Update customer table का नेम है set salary equals to salary plus 5. Okay, now एक query तो हम लोगों ने लिखा है. Now ये जो query है, ठीक है, वो query affect हो रहा है कि नहीं, ठीक है, किसको affect हो रहा है, वो information we want to know. तो हम लोग वी कैन यूज दी कर्सर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, हम लोग कर्सर के एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं. तो एक एट्रीब्यूट जो है कर्सर का नॉट फाउंड. तो इफ यू वांट टू यूज कर्सर एट्रीब्यूट तो आपको उसके पहले क्या लिखना है, एसक्यूएल लिखना है एंड देन योर ऑपरेटर जो है वो यूज करना है एंड देन राइट द एट्रीब्यूट नेम. ओके, इफ एसक्यूएल नॉट फाउंड देन क्या आपको जो प्रिंट करवाना है कि नो कस्टमर सिलेक्टेड. एल्स इफ अगर ये एट्रीब्यूट आप यूज करो, कोई मतलब क्वेरी अफेक्टेड हुआ है, देन आपको क्या करना है, कितना रोज अफेक्ट हुआ है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर चेकिंग यस कोई क्वेरीज है लिखा है हमने तो वो रिकॉर्ड को अफेक्ट कर रही है कि नहीं. इफ इट इज अफेक्टिंग देन हाउ मेनी रोज आर अफेक्टेड. ओके, आपको वो काउंट करना है तो यू कैन यूज द रो काउंट एट्रीब्यूट. ओके, एंड देन डिस्प्ले. सिंपल एट्रीब्यूट्स का यूज दिखाया इन दिस प्रोग्राम. दे शोन द यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स. कौन से एट्रीब्यूट्स, कर्सर के एट्रीब्यूट्स. दिस आर द एट्रीब्यूट्स. नॉट फाउंड इज एट्रीब्यूट, फाउंड इज एट्रीब्यूट, row count is attributes. Okay, when you will run this program, जब आप ये program run करोगे तो what will be the output, 6 customers are selected. कितना customer, 6 customers are selected. Okay, why? Because जो query लिखा था वो query successfully apply हो रहा है, ठीक है, successfully apply हो रहा है. क्या था अपडेट में कि 500 से इंक्रीज करना है सैलरी, तो दैट इज इंक्रीज. ओके, वो इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो एल्स इफ अगर इंक्रीज हो रहा है देन उसका काउंट करके रिटर्न करवाना है. तो टोटल रोज, ओके, कस्टमर सिलेक्टेड, तो वो 6 कस्टमर सिलेक्टेड. ओके, तो डिस्प्ले हो गया. नाउ यहाँ से हमने कल लेफ्ट हो गए थे हम लोग, ठीक है. तो टुडे वी विल कंटिन्यू विद दिस द एक्सप्लिसिट कर्सर. व्हाट इज एक्सप्लिसिट कर्सर? तो एक्सप्लिसिट कर्सर्स आर द प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर. ओके, मतलब प्रोग्रामर कैन डिफाइन द कर्सर. ओके, अगर इफ द प्रोग्रामर डिफाइन द कर्सर देन हम उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सप्लिसिट कर्सर. Why programmer want to declare the explicit cursor? For gaining the more control over the context area. जो एरिया क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, आउटपुट जो एरिया में डिस्प्ले हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हैंडल करने के लिए प्रोग्रामर कैन क्रिएट देयर ओन एक्सप्लिसिट कर्सर. ओके, an explicit cursor, an explicit cursor should be defined in the declaration section of the PLSQL block. Okay, yes, sorry students, sorry, explicit cursors as program defined. Okay, sorry, an explicit cursor should be defined in the declaration section of the PLSQL block. ठीक है, आप इसको कहाँ पे डिक्लेयर करोगे, डिक्लेरेशन सेक्शन में. ओके, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिक्लेयर. ओके, अगर हम लोग फंक्शन भी बना रहे, वी आर मेकिंग द यूजर डिफाइंड फंक्शन, so first of all we have to declare that function, then we can make that function, then we can call that function. ठीक है, that is a sequence. तो same explicit cursor के लिए first of all we have to declare the cursor. ठीक है, हमको उसको cursor declare करना है, then उसको हम लोग define करेंगे. So you can declare the cursor in the declaration section of the PLSQL block. Okay, and it is created on the select statement. वो कहाँ पे create होगा, उसको हम लोग कहाँ पे क्रिएट करेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्रिएट करेंगे. वाई सिलेक्ट स्टेटमेंट में क्रिएट करेंगे? बिकॉज व्हाट इज अ कर्सर, कर्सर क्या हैंडल कर रहा है, जो आउटपुट आ रहा है, जो क्वेरीज, जो रोज क्वेरीज के थ्रू जो रोज अफेक्टेड हो रहा है, जो आउटपुट आ रहा है उसको हैंडल कर रहा है. सो वी विल राइट दी और वी विल क्रिएट दी कर्सर विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट. ओके, which returns more than one row. The syntax for creating an explicit cursor. How to create the cursor, कैसे create करना है? So this is a syntax. Cursor, C-U-R-S-O-R. This is a keyword. Okay, तो आपको वैसे ही लिखना है. You have to write cursor, then cursor name. Okay, आपको जो भी नेम देना, जैसे आप वेरिएबल नेम दे रहे हो या तो फंक्शन के लिए नेम दे रहे हो, सेम you can give any name to cursor. Is again keyword. Okay, आपको is again keyword है तो उसका as it is लिखना है, no change. And then select statement. फिर आपको जो भी select query लिखना है then you can write.
ओके, जो भी आपको क्वेरी लिखना है दैट यू कैन राइट. तो बिफोर राइटिंग द क्वेरी यू हैव टू क्रिएट द कर्सर. कर्सर, ओके, कर्सर का जो भी नेम देना है is and then select statement. Okay, we will see the program, so then you will get the clear idea. Yes, working with an explicit cursor include the following steps. These are the steps, okay, that we have to follow while declaring the cursor. The first is declaring the cursor for initializing the memory. Cursor को declare करो. Then opening the cursor for allocating the memory. Okay, why memory word यूज किया है, क्योंकि what Oracle जो area create कर रहा है, ठीक है, उसको इम्प्लिसिट बोल रहा है. वही एरिया नाउ प्रोग्रामर वांट्स टू क्रिएट. ओके, वही एरिया प्रोग्रामर को क्रिएट करना है. व्हाई? फॉर डिस्प्लेइंग द आउटपुट. ओके, तो वो एरिया हम लोग एक्सप्लिसिटली क्रिएट करें. दैट्स व्हाई we have to declare the cursor for initializing the memory. Then we have to open the cursor for allocating the memory. Okay, then fetching the cursor for retrieving the data. मतलब जो आउटपुट हमको वो एरिया में डिस्प्ले करवाना है, दैट वी हैव टू स्पेसिफाई कि वो एरिया तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसको इनिशियलाइज किया मेमोरी, मतलब एरिया नाउ वी हैव क्रिएटेड द एरिया. अभी वो एरिया में क्या आउटपुट डिस्प्ले करना है, दैट वी हैव टू फेच. ओके, सो वी राइट द सिलेक्ट स्टेटमेंट. क्लोजिंग एंड देन क्लोजिंग द कर्सर टू रिलीज द एलोकेटेड मेमोरी. ओके, जो आउटपुट आपका डिस्प्ले हो गया, देन डिस्प्ले होने के बाद क्या करना है, उसको डीएलोकेट करना है मेमोरी. ओके, तो डीएलोकेट करने के लिए वी विल क्लोज द कर्सर. ओके, तो पहले हम लोग कर्सर डिक्लेयर करेंगे, कर्सर ओपन करेंगे, देन वी विल रिट्राइव द डेटा. हम लोग डेटा रिट्राइव करेंगे, ठीक है. we display the data, okay, and then we will close the cursor. Okay, yes, now step by step we say कि कैसे करना है. The first is declaring the cursor. Okay, first step क्या था, declaring the cursor. And how to declare cursor? So this is a syntax. Okay, so customer, okay, declaring the cursor, define the cursor with a name and the associated select statement. How to declare cursor? तो आपको cursor लिखना है, ठीक है. Then cursor का जो भी name देना, you can give the name. Okay, you can give the name. This is cursor name. Is a keyword, तो आपको ऐसे ही लिखना है is. Then select statement. Select ID, name, address from customer. So whatever data you want to display, just write the query. यहाँ पे query लिखा है. Before writing query हमने क्या किया, cursor create किया. What is the name of that cursor? C customer, C underscore customer. Okay. Now opening the cursor. Second step क्या है, cursor open करो. So how to open the cursor? Just open लिखो. Open is a keyword, so you have to write as it is open and cursor name. What is the cursor name? क्या हमने mention किया था, C underscore cursor. This is a user defined name. Okay, you can give whatever you want. Okay, so opening the cursor allocates the memory for the cursor and makes it ready for fetching the rows written by the SQL statement into it. Okay, why we have to open the cursor? Because जो cursor हम open कर रहे, ठीक है, उसमें जो memory allocate किया था वो memory allocate हो जाएगा, and then we will retrieve the data in that memory area. Okay, then fetching the cursor. Next step क्या था, fetching the cursor. How to fetch the cursor? Fetching the cursor involve accessing one row at a time. Okay, for example, we will fetch rows from the above open cursor. कैसे उसको fetch करेंगे, like this. Okay, जो हमने ऊपर cursor बनाया ना, उसको fetch करना पड़ेगा ना, उसको retrieve करना पड़ेगा. तो how to fetch? You have to use fetch keyword. Okay, उसको display करवाना है, screen पे display करवाना है. हम तो select query लिख रहे हैं, but select के लिए cursor क्या होता है, we are implicitly हम लोग क्या करते हैं, उसको cursor use कर रहे हैं, ठीक है. तो implicitly करें तो Oracle अपने हिसाब से उसको क्या करेगा, फेच करेगा. बट दिस इज एक्सप्लिसिट, ये एक्सप्लिसिट है, तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिट के लिए वी हैव टू फेच दी क्वेरी. ओके, ओके, सो वी हैव टू फेच सी कस्टमर. ओके, इसमें फेच करना है, तो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किया है, सी ID, सी नेम एंड सी एड्रेस. ओके, सी ID, सी नेम एंड सी एड्रेस, दिस आर द कॉलम्स नेम. इसको हम लोग कहाँ पे फेच करें, ये वाले वेरिएबल्स में, ठीक है. सी अंडरस्कोर ID, सी अंडरस्कोर नेम एंड सी अंडरस्कोर एड्रेस, जो भी आपको क्रिएट करना है वेरिएबल नेम, दिस इज अगेन यूजर डिफाइंड, so you can write any names. Okay, and closing the cursor. Closer क्या है, close कर दो. Okay, so this is a steps हमने देखा. नाउ एक होल प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं. ओके, ऊपर जो स्टेप डिफाइन किया उसके थ्रू हम लोग एक प्रोग्राम वी विल सी. ओके, तो डिक्लेयर, ओके, वेरिएबल डिक्लेयर करो, सी ID. ओके,
किसके लिए है? कस्टमर के टेबल में जो आईडी कॉलम है उसके लिए। दिस इज द सिंटैक्स। सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया, ओके, वो किसको रिफर करा है? कस्टमर के टेबल में जो नेम कॉलम है उसको रिफर कर रहा है। एड्रेस, एड्रेस इज रिफर टू कस्टमर के टेबल में जो एड्रेस कॉलम है उसको रिफर कर रहा है, ओके। देन कर्सर डिक्लेयर किया हमने, कर्सर, ओके, ये हमने देखा ऊपर कि कैसे डिक्लेयर करना है। कर्सर, गिव द नेम ऑफ दैट कर्सर इज, ओके, इज अ कीवर्ड है, एंड देन सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करवाना है वो, ओके। नाउ देन बिगिन, ओके, बिगिन, जब वी विल स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। उसमें हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप क्या था? कर्सर डिक्लेयर करने के बाद उसको ओपन करना। तो वी आर ओपनिंग द कर्सर हियर, ओपन सी कस्टमर इज अ कर्सर नेम। हमने ओपन किया ना। हम लोग क्या करें? वी आर फेच लूप हम लोग यूज करें, ठीक है। लूप, यू नो व्हाट इज अ लूप। तो हम लोग लूप करें, व्हाई? बिकॉज वी वांट एवरी रिकॉर्ड्स, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स है, हर एक रिकॉर्ड्स हमको क्या करना है? रिटेन करवाना है, ओके। तो वी आर यूजिंग द लूप फॉर एक्सेसिंग ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो फेच सी, ओके, फेच करना है उसको। इसमें फेच करना है, कहाँ से करना है? ये कर्सर में से करना है, इनटू दिस आर द वेरिएबल्स जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, ओके। व्हेन सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ हमने उसको क्या किया? फेच किया। देन हमने एग्जिट, जो लूप लिखा था उसको एग्जिट करना है व्हेन, ठीक है, उसको रिकॉर्ड्स फाउंड नहीं होगा तभी, ओके। लूप क्लोज कर दो, देन प्रिंट करवा दो जो भी वेरिएबल्स हमने फेच किया है, आईडी, नेम, एड्रेस, एंड उसको एंड लूप, लूप इज क्लोज, एंड क्लोज द आपका जो कर्सर है वो एंड। तो व्हाट विल बी आउटपुट? आउटपुट क्या होगा कि जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो आउटपुट है, जो रिटर्न आउटपुट तो वही होगा जो सिलेक्ट क्वेरी से होगा वो, बट हमने यहाँ पे क्या किया? ये आउटपुट जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वो एरिया हम लोगों ने क्या किया? एक्सटर्नली क्रिएट किया, इन एक्सप्लिसिट कर्सर हम लोगों ने यूज किया, ओके। आउटपुट क्या होगा? जो क्वेरीज हम लोगों ने लिखा है, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम दिस 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 फ्रॉम द टेबल, वही डिस्प्ले होगा टेबल में से, ओके। उसका आईडी, उसका नेम, एंड उसका एड्रेस, जितने भी रिकॉर्ड्स है, हर एक रिकॉर्ड्स का अपना अपना आईडी, अपना नेम एंड एड्रेस विल बी रिटर्न। आउटपुट तो वही होगा, बट आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा? आउटपुट कहाँ पे डिस्प्ले होगा? जो एरिया हमने एक्सप्लिसिटली क्रिएट किया है, ठीक है, जो एरिया हमने एक्सप्लिसिटली क्रिएट किया है वहाँ पे आउटपुट विल बी डिस्प्ले, ओके। तो दिस इज अ कर्सर, ओके। अगर सिंपली हम लोग हमारा ये कर्सर क्रिएट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली अपना क्वेरी रन करेंगे, तो ओरेकल विल क्रिएट द एरिया। अगर हम लोग क्रिएट करें तो ओरेकल क्रिएट नहीं करेगा, हमने जो क्रिएट किया था एरिया, वहाँ पे आउटपुट विल बी डिस्प्ले। सो दिस इज अ कर्सर, ओके। तो अभी तो आपको लगेगा ओरेकल तो खुद से कर है, तो व्हाई नीड टू क्रिएट आवर ओन कर्सर, ठीक है। तो अभी आपको नहीं समझ में आएगा, व्हेन वी गो टू द इंडस्ट्री, तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट उनका होता होगा कि नहीं हमको क्रिएट करना, उनको ज्यादा उनको काम करना होगा कुछ, देन एट दैट टाइम दे आर यूजिंग दिस कर्सर, ठीक है। अभी एज अ स्टूडेंट हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ती कर्सर क्रिएट करने के लिए, बट एज आईटी स्टूडेंट वी शुड नो कि वी कैन आल्सो क्रिएट दी वर्क स्पेस, जहाँ पे आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है वो वर्क स्पेस भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ओके, इन दी डेटाबेस में। तो दिस इज द कर्सर। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? समझ में आ रहा है? You have to read this theory once, okay? आपको ये एक बार तो रीड करना पड़ेगा, then you will get the clear idea. मैंने एक्सप्लेन किया है, ओके? यस अरुण, गुड। तो एक बार आप खुद उसको रीड करो, ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, ओके? बट कर्सर कंसेप्ट यू शुड नो कि व्हाट इज कर्सर, ओके? आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन। मतलब जब मैंने भी वो फॉर द इंटरव्यू तो वो लोग पूछते हैं आपको कंपनी में कि व्हाट इज कर्सर, व्हाट इज ये, व्हाट इज दिस, ओके? ये बेसिक आपको पता होना चाहिए कर्सर क्या है। Yes. The next topic that we have to learn, that is procedures in PLSQL. Okay, procedures, procedures in PLSQL. Okay, the next topic is procedures in PLSQL. Okay. Yes, students. Only 13 students are there. Why attendance भी इतना कम है? Attendance only 13 students है, because this is a new topic, procedures in PLSQL. Okay, okay, I am explaining today. Tomorrow again I will explain. Okay, so what is procedure? कोई मुझे बताएगा what is procedure and what is function? What is the difference between procedure and function? आप पढ़ चुके हो ना, प्रोसीजर एंड फंक्शन दोनों आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? प्रोसीजर एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रोसीजर एंड फंक्शन में क्या डिफरेंस है? Who will tell?
फंक्शन मतलब यूजर डिफाइंड फंक्शन, ओके, जो हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड प्रोसीजर, व्हाट इज द डिफरेंस, किसी को पता है? ओके, व्हाट इज फंक्शन वो मुझे बताओ, चलो प्रोसीजर जाने दो, व्हाट इज फंक्शन, टेल मी, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, वो तो आपको पता होगा ना, दैट यूजर डिफाइंड फंक्शन वी हैव आल्सो क्रिएटेड इन जावास्क्रिप्ट, हम लोगों ने क्रिएट किया था फंक्शन, व्हाट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, yes, one answer is there, group of statements called function, yes, okay, function is a set of instruction, you can say, that perform the particular task. Yes, sir. Function is used to calculate something from a given input. Okay. Yes. So, function, or you can say user-defined function, is a set of instructions which perform the particular task. For example, हमने कैलकुलेशन के लिए या तो फैक्टोरियल वैल्यू फाउंड करने के लिए या तो सम करने के लिए एक बार हमने फंक्शन बना के रख दिया, तो एवरी टाइम वी कैन वी हैव टू ओनली कॉल दैट फंक्शन, ठीक है। हाँ, ऐड फंक्शन, एवरेज, जो भी फंक्शन, ओके, जो भी काम, जो भी टास्क आपको बार बार लग रहा है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, जो कोड आपको बार बार लग रहा है, तो आप क्या करोगे उसके लिए, व्हाट यू विल डू, यू विल मेक दी वन फंक्शन, एक फंक्शन बना के रख दोगे, देन एवरी टाइम जब भी आपको जरूरत होगा तो आप क्या करोगे, जस्ट वो फंक्शन का कॉल करोगे। सो रिपीटेशन जो है वो आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम है उसमें आपको बार बार एडिशन करने की जरूरत पड़ रही है, व्हाट यू विल डू कि आप एडिशन का एक फंक्शन बना के रख दोगे, ओके, एंड जब आपको एडिशन की जरूरत है तो जस्ट यू विल कॉल दैट फंक्शन, सो दैट इज अ फंक्शन, ओके। तो प्रोसीजर भी सेम ही है बट थोड़ा सा एक माइनर डिफरेंस है, लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल टेल यू। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर्स इन PL/SQL। ए सब प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम, ओके, व्हाट इज अ सब प्रोग्राम, प्रोग्राम के अंदर जो हमने सब प्रोग्राम जो यूनिट्स हम लोग बनाते हैं, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब प्रोग्राम। तो सब प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम unit, or you can say module that performs a particular task. These subprograms are combined to form a large programs. This is basically called as modular design. Okay, हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा छोटा प्रोग्राम्स के ग्रुप बनाते हैं, देन उसको हम लोग कंबाइन करके एक बड़ा प्रोग्राम्स बनते हैं। व्हेन यू विल गो इन द लास्ट ईयर ना, तो आपको प्रोजेक्ट बनाना रहता है, तो आप डायरेक्टली पूरा प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे, व्हाट यू विल डू, आप मॉड्यूल्स बनाओगे। फर्स्ट यू विल मेक द यूजर मॉड्यूल, देन यू विल मेक द एडमिन, सॉरी, फर्स्ट मेक द एडमिन मॉड्यूल, देन यूजर मॉड्यूल बनाओगे, देन वो मॉडल्स बना के उसको कंबाइन करोगे, तब जाके आपका पूरा एक प्रोजेक्ट बनेगा, ओके। क्या है, सब प्रोग्राम ही है, फंक्शन आपका सब प्रोग्राम ही है, ठीक है। ये सब प्रोग्राम कैन बी क्रिएटेड एट स्कीमा लेवल, inside the package, or inside the PL/SQL block, okay. At the schema level, subprogram is a stand-alone subprogram, ठीक है, explain करूँ मैं आपको। It is created with the create procedure or create function statement. It is stored in the database and can be deleted with the drop procedure, drop function, okay. जो ये सब प्रोग्राम्स है, we can create the subprograms at the 3 level. The first is schema level, डिजाइन लेवल पे, ठीक है, हम लोग कहाँ पे करेंगे, डिजाइन लेवल पे करेंगे, ठीक है। स्टैंड अलोन सब प्रोग्राम, ठीक है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इट इज स्टैंड अलोन सब प्रोग्राम होगा, एंड वो प्रोग्राम सब प्रोग्राम्स को वी कैन कॉल, ओके, एंड वी कैन क्रिएट एंड वी कैन आल्सो ड्रॉप दैट प्रोग्राम। विद एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सब प्रोग्राम क्रिएटेड इनसाइड द पैकेज, इस पैकेज सब प्रोग्राम, ठीक है। अभी पैकेज हमने पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा व्हाट इज पैकेज, तो पैकेज छोड़ दो। PL/SQL subprogram are named PL/SQL blocks that can be invoked with a set of parameters. PL/SQL provide two kind of subprogram. The one is function and the one is procedure. Function, you know, these subprograms return a single value, mainly used to compute and return a value. जब आप कोई subprogram बनाते हो and जब उसका value कुछ return करवा रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, function, क्या बोलोगे, function। and आप कोई सब प्रोग्राम बना रहे हो, ठीक है, और वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है, जब वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, ओके। दिस सब प्रोग्राम्स डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, मेनली यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन। तो जो आप फंक्शन बना रहे हो, ठीक है, फंक्शन ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू, ओके, एंड जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसीजर, ओके। तो जो सब प्रोग्राम वैल्यू रिटर्न करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन, ओके। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न दी वैल्यूज, एंड जो सब प्रोग्राम्स हमने बनाया है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रोसीजर। सब प्रोग्राम्स डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू डायरेक्टली, ओके, इट इज मेनली यूज्ड टू परफॉर्म द एक्शन, ओके। तो लेट्स सी पार्ट्स ऑफ द PL/SQL सब प्रोग्राम, जो आप सब प्रोग्राम बनाते हो,
कि वो सब प्रोग्राम फंक्शन है, ये तो प्रोसीजर है, ठीक है। क्या क्या पार्ट, क्या उसका स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वी हैव टू डिक्लेरेटिव पार्ट, डिक्लेयर द फंक्शन, ओके, द एग्जीक्यूटेबल पार्ट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हमने देखा, फिर एसक्यूएल का स्ट्रक्चर उसको फॉलो करना पड़ेगा। देन हाउ टू क्रिएट द प्रोसीजर, ओके, व्हाट इज प्रोसीजर, प्रोसीजर नेवर रिटर्न एनी वैल्यू डायरेक्टली, ठीक है। प्रोसीजर अगर हम लोग बना रहे हैं तो प्रोसीजर कभी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ओके। प्रोसीजर मतलब फंक्शन ही, ओके। फंक्शन भी हम लोग किसके लिए बनाते हैं, फॉर पर्टिकुलर टास्क। प्रोसीजर भी हम लोग किसके लिए बनाएंगे, फॉर पर्टिकुलर टास्क। पर जो प्रोसीजर हम लोग बनाएंगे, प्रोसीजर नेवर रिटर्न वैल्यूज, वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। फंक्शन जो है वो वैल्यूज रिटर्न करता है, ओके। है प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एक प्रोग्राम है, वी विल सी दैट प्रोग्राम, यस। हाउ टू क्रिएट प्रोसीजर और फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, तो आपको जस्ट प्रोसीजर इज क्रिएटेड विद ये सिंटैक्स, दिस इज द सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस, दोनों आपको लिखना है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ओके। देन उसका आपको प्रोसीजर का नेम देना है, सी दिस इज द सिंटैक्स, ओके, क्रिएट और रिप्लेस, ओके, प्रोसीजर, एंड देन यू हैव टू राइट द प्रोसीजर नेम, जैसे फंक्शन का नेम लिखते हो वैसे प्रोसीजर का नेम यू हैव टू लिखना है। देन स्क्वायर ब्रैकेट में पास द पैरामीटर्स, ओके, जो पैरामीटर्स आपको पास करना है दैट यू कैन पास, तो पैरामीटर पास करने के लिए यू हैव टू राइट इन आउट एंड इन आउट, उसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, व्हाट इज इन आउट एक्सप्लेन करूँ। देन बिगिन, एंड देन यहाँ पे आपका जो भी कोड है दैट कोड यू विल राइट, ओके, एंड एंड द प्रोसीजर, ओके। जिसके लिए प्रोसीजर बना रही हो प्रोसीजर का कोड आप कहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे, ओके। देन एंड द प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या करोगे, एंड करोगे, ठीक है। तो वेयर प्रोसीजर नेम स्पेसिफाई द नेम ऑफ द प्रोसीजर्स, ओके, और रिप्लेस ऑप्शन अलाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोसीजर, आपको रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस भी कर सकते हो, दैट्स व्हाई हियर द सिंटैक्स में दिया हुआ है उन्होंने और रिप्लेस, ठीक है। द ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट कंटेन्स द नेम, मोड एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। ये जो आप फंक्शन बनाते हो ब्रैकेट ओपन करके यू आर पासिंग द पैरामीटर्स, ठीक है। तो पैरामीटर्स यू कैन पास, इट इज ऑप्शनल, वो ऑप्शनल है, इफ यू वांट देन यू कैन पास, बट अगर इफ यू वांट टू पास देन आपको उसमें क्या लेना पड़ेगा, नेम यू हैव टू डिक्लेयर, ओके, पैरामीटर नेम, उसका मोड एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, मोड एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, ओके। तो इन, what is in represent the value that is be passed from outside, okay, जो वैल्यू हम लोग पास करेंगे वो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, इन। आउट रिप्रेजेंट द पैरामीटर दैट विल बी यूज्ड टू रिटर्न द वैल्यू, जो वैल्यू हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं, करना है हमको, उसको हम लोग क्या मेंशन करेंगे, आउट, ओके। प्रोसीजर बॉडी कंटेन्स द एक्जीक्यूटेबल पार्ट, ओके, and the as keyword is used to instead of is keyword for creating a stand alone procedure, ठीक है, is and as keyword is used to instead of the is keyword for creating the stand alone procedures, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, सी सिंटैक्स आपको कंफ्यूज करने वाला है बट व्हेन यू विल सी द प्रोग्राम तो आपको इजी लगेगा, सी क्रिएट, ओके, और रिप्लेस प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर का जो भी नेम देना है तो दिस इज द नेम ऑफ प्रोसीजर्स, ओके। पैरामीटर्स ऑप्शनल है, अभी हम लोग दिस इज अ प्रोसीजर तो हम लोग पैरामीटर पास नहीं करेंगे, तो इट इज ऑप्शनल, ठीक है। हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, जस्ट प्रोसीजर का नेम दिया है एज, ओके, प्रोसीजर है तो आपको एज लिखना है। देन बिगिन, ओके, ये प्रोसीजर में आपने जो ग्रीटिंग्स नाम का प्रोसीजर क्रिएट किया है, जब वो रन करोगे तो क्या होगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ओके। तो उसका लॉजिक हमने कहाँ पे लिखा है, बिगिन सेक्शन में। तो दिस इज वन प्रोसीजर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज ग्रीटिंग्स, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज ग्रीटिंग्स, ओके। When the above code is executing using the SQL prompt, it will produce the result. क्या result produce होगा, procedure created, okay, क्या result होगा, procedure created, okay. Now executing the procedure, how to execute, उसका execute कैसे करना है, ठीक है। ये तो हमने procedure बनाया है, तो उसका execute कैसे करना है, उसको कॉल कैसे करना है, ओके। तो जैसे आप फंक्शन कॉल करते हो वैसे आपको लिखना है, द अबव प्रोसीजर नेम ग्रीटिंग्स कैन बी कॉल्ड विद द एग्जीक्यूट कीवर्ड, तो आपको उसके लिए क्या लिखना होगा, एग्जीक्यूट, जो प्रोसीजर आपने बनाया है दैट प्रोसीजर यू कैन एग्जीक्यूट, यू कैन कॉल दैट प्रोसीजर यूजिंग द एग्जीक्यूट, ओके, एग्जीक्यूट एंड देन यू हैव टू राइट ग्रीटिंग्स, एग्जीक्यूट एंड देन क्या लिखा है, ग्रीटिंग्स हमने लिखा है, ठीक है। तो ये हमें जैसे फंक्शन कॉल करते हैं वैसे हमने प्रोसीजर को यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ओके। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, दिस इज आउटपुट, हेलो वर्ल्ड, व्हाई, बिकॉज इन दिस प्रोसीजर ग्रीटिंग प्रोसीजर क्या कोडिंग हमने लिखा है, जस्ट हेलो वर्ल्ड,
Okay, that will be printed. Okay, the procedure can also be called from another PLSQL box में भी आप कॉल कर सकते हो उसको. ठीक है, begins फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने नीचे begin लिखा, वो begin में आप ये प्रोसीजर कॉल करोगे, greetings करके लिखोगे तो भी आउटपुट विल बी डिस्प्ले. ओके, अब उसको ड्रॉप करना है प्रोसीजर को, तो हाउ टू ड्रॉप, जस्ट ड्रॉप प्रोसीजर एंड प्रोसीजर नेम. ओके, कैसे डिलीट करोगे, ड्रॉप प्रोसीजर एंड प्रोसीजर का नेम. ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम क्या है, ग्रीटिंग्स, तो यू विल राइट द नेम ऑफ दिस प्रोसीजर. ओके, ओके, पैरामीटर्स मोड इन PLSQL सब प्रोग्राम जो देखा, इन, व्हाट इज इन, व्हाट इज आउट, व्हाट इज इन आउट. ओके, इन पैरामीटर लेट्स यू पास अ वैल्यू टू द सब प्रोग्राम, फिर वो सब प्रोग्राम प्रोसीजर है या तो फिर फंक्शन है. ओके, सब प्रोग्राम्स कैन बी टू टाइप्स, एक तो प्रोसीजर एंड एक भी फंक्शन. ओके, तो आप यू डिक्लेयर द इन, इन इट इज अ रीड ओनली पैरामीटर्स. ओके, इन parameter allow you to pass a value to the sub programs. आपको सब प्रोग्राम्स में वैल्यू पास करने देगा, फंक्शन में वैल्यू पास करने देगा. ओके, inside the sub program in parameter act like constant जैसे वर्क करेगा. it cannot be assigned a value, ठीक है, उसका वैल्यू असाइन नहीं करेगा, जो कांस्टेंट वैल्यू देगा that it will be used. Okay, it is a default mode of parameter passing. Parameter are passed by reference. Okay, what is reference, by reference, by call by value, we will learn. हम लोग देखते हैं उसको, नेक्स्ट आ रहा है. आउट, the out parameter returns a value to the calling program. Okay, inside the sub program and out parameter act like a variable. You can change its value and reference the value after assigning it. Okay, it is the actual parameter. The actual parameter must be variable and it is passed by value. Yes student, I hope you know what is call by value, call by reference. Yes, what is call by value, what is call by reference in this function. फंक्शन में कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या है, एनीवन कैन टेल मी. यस, व्हाट इज फंक्शन आपको पता है, व्हाट इज द यूज ऑफ फंक्शन, यू नो. ओके, तो वो फंक्शन में व्हाट इज कॉल्ड बाय वैल्यू एंड कॉल्ड बाय रेफरेंस यू हैव ऑलरेडी डन इन C++. ओके, आई थिंक जावा में भी आपने किया होगा. तो क्या है, कैसे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस. you can call the function by call by, sorry, you can pass the parameters, और जो पैरामीटर पास कर सकते हो उसे कॉल कर सकते हो कॉल बाय वैल्यू से या तो कॉल बाय रेफरेंस. तो व्हाट इज द डिफरेंस. यस, वन आंसर इज दैट. यस, इन कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर्स आर असाइंड एंड कॉल बाय रेफरेंस में कॉल बाय रेफरेंस. Yes, anyone can give the answer. Assign and objects create. Assign and object create. Okay. Yes, anyone can try और कर सकते हो, इसको पता है. और what is called by value, called by reference. Yes or no. Call by reference मतलब क्या, we can call the function to the address of that variable. Okay, reference मतलब क्या, address. Okay, जब हम लोग कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, we will pass the address as a parameter. हम लोग ऐसे पैरामीटर क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ द वेरिएबल. तो उसको वो क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस. अगर हम वी आर पासिंग द वैल्यू, देन वो क्या हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू. ओके, yes, we pass values of the variables to it. Yes, Irshad. Okay, and if we are passing the address, okay, if we are passing the address as a parameter, then it will be called by reference.